जय गुरुजी। धन धन गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। गुरुपा के आशीर्वाद और संगत के विश्वास से हमारा सत्संग गुरु परिवार 11,000 से भी बड़ा हो गया है। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस न हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले और सुनने वाले दोनों का भला होता है। दोनों को गुरुजी का आशीर्वाद मिलता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए, इसलिए सत्संग पूरा सुने। सत्संग में अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी संगत जी। मैं गुरु जी की बेटी जिला पटियाला तो बोल रही हूँ। संगत जी ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरु जी मेरा शुक्राना सत्संग कबूल करना। संगत जी गुरु जी ਦਾ मैं ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਲਾਈਫ ਬਲੈਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਔਰ ਬਚਾ ਰਹੇ ਆ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ 'ਤੇ ਕਿ ਕੁੜੀਏ ਤੂੰ ਘਬਰਾ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਤੂੰ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਆਪ ਹੀ ਦੇਖਾਂਗਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਕੁੜੀਏ ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਸੋਚ। ਜੋ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਸੋਚਾਂ ਅਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਬੋਲਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਹੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਸਭ ਕਾਰਜ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਲਾਈਫ ਬਲੈਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸकी ਯਾਰੀ ਦੋਸਤੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗਲਤ ਸੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਜਦ ਵੀ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਕੁੜੀਏ ਤੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਹੈ। ਹੋਰ ਸਭ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਸਭ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਸਭ ਨੇ ਮੇਰਾ ਭਰੋਸਾ ਤੋੜਿਆ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਸ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਕਰ ਵੀ ਰਹੇ ਹੈ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ। ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਸ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਵੀ ਆਇਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਕੰਮ 'ਤੇ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਸੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਟ ਉਹ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਨਾਲ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਨਾਲ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸਦੀ ਬੁੱਧੀ ਆਪ ਹੀ ਸਹੀ ਕਰਨਗੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬੇਟਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਠੀਕ ਕਰਨਗੇ। ਬਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਸਦਾ ਗੁੱਸਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਿਆ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਵਰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਉਸਦੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਨਸ਼ਨ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਸੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਤਣਾਅ ਸੀਗਾ ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਰਿਵੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਹੈ। ਬਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਸੀਗੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹੀ ਕਹਿਣਾ, ਹੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ, ਕੁੜੀਏ ਘਬਰਾ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਾਈਫ ਬਲੈਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਜੀਵਨ ਭਰ ਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਬਰ ਰੱਖ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਸਬਰ ਕਰਦੇ ਰੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹਾਂ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹੀ ਚਮਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਆਪਸੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਠੀਕ ਹੋਏ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਸੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਆ ਗ੍ਰਹਿ ਚਾਲ ਸੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਠੀਕ ਕੀਤਾ।
ਅੱਗੇ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰਨਗੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਗੱਲ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰਾ ਜਿਸਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਾਂ ਸਿਵਾਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਸੱਲੀ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਆਪਣੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਕਰਦੇ ਆ ਸ਼ੇਅਰ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਨ ਹਲਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਭੈਣ ਭਾਈ ਦਿੱਤੇ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਵੀ ਦਿੱਤੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਿਲੇ ਸਾਨੂੰ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੰਨਾ ਸਾਥ ਦੇਣੇ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆਂਟੀ ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਸ ਕਰਨ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਣ। ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਸ ਕਰਨ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਆਂਟੀ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਜੇ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਨਾ ਛੱਡਣਾ, ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋੜੀ ਰੱਖਣਾ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी। संगत जी इस टाइम में 9 बजे है रात के। आज तारीख है 20 सितंबर। गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठ के मैं ये सत्संग कर रही हूँ, शेयर कर रही हूँ सत्संग। अगर मेरे से कोई भूल चूक हो जाएगी तो गुरु जी मुझे माफ़ करना, संगत जी मुझे माफ़ कर लेना। गुरु जी मुझे कह रहे हैं कि आप शुक्राना सत्संग शेयर कर दो, और मुझे कुछ भी नहीं पता। मैं वैसे अभी जस्ट बैठी हूँ गुरु जी के सामने और मैं ये बोल रही हूँ, जो भी बोल रहे हैं तो गुरु जी बोल रहे हैं। संगत जी अभी बस चलते रोज़ पूजा तो करती हूँ गुरु जी के सामने, अरदास लगाई है मैंने, अभी वो हो जाएगी पूरी। गुरु जी कहते हैं कि हो जाएगा, आपका सब काम अच्छा हो जाएगा। इतनी अच्छी अच्छी मैसेजेस देते हैं गुरु जी, बहुत खुश हो रही है, इंस्पायर मुझे इंस्पिरेशन मुझे मिल रही है। और कल का ही एक शुक्राना सत्संग में बोलूँगी। तो मैं घर में ही ना डस्टिंग कर रही थी और कांच का आरग बना है ड्राइंग रूम और डाइनिंग के बीच में, वो मैं कर रही थी, किचन के बीच में वो मैं साफ़ कर रही थी। तो इतने में जब मैं सफाई कर रही थी, सत्संग भी सुन रही हूँ यहाँ से, और मैं काम करते करते ये भी सत्संग भी सुन रही हूँ और काम भी कर रही हूँ। हमेशा मेरा ऐसे ही चल रहा है, 1 बजे तक दिन में 4-5 सत्संग तो सुन ही रही हूँ मैं हमेशा रोज़। जय गुरु जी। तो इतने में जब मैं ये कर रही थी, उसका जो दरवाज़ा है ना वो भी कांच वाला ही है, और वो कर ही रही हूँ तो इतने में वो सारा निकल ही गया, कब्ज़ा ही निकल गया उसका। पर वो गिरा नहीं, अगर गिर जाता टूट के मेरे पैरों पे ही गिर आ जाता है। और गुरु जी ने मुझे बचा लिया उस टाइम, इतने बड़े कष्ट से बचा लिया, और पता नहीं क्या होना था। थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरे बच्चों के अंग संग रहना गुरु जी हमेशा, सारी संगत की परेशानियाँ दूर कर लेना गुरु महाराज। और जो भी ये सत्संग शेयर कर रहे हैं, अंकल जी है, आंटी जी है, जो भी है, उनकी भी सारी परेशानियाँ दूर कर लेना गुरु महाराज। मैं आपकी बेटी हूँ, मैंने कब का आपको परमपिता शिव बाबा माना है गुरु महाराज। आपकी नादान बेटी है, मुझे कुछ नहीं आता है, मेरी भूल चूक माफ़ कर लेना गुरु महाराज। मुझे अपने साथ हमेशा कनेक्ट कर लेना, कभी मेरा हाथ नहीं छोड़ना, मेरे बच्चों का नहीं छोड़ना।
हमारे परिवार की हेल्थ ब्लेस कर लेना और खूब सारी खुशियाँ देना, और पूरे संगत को भी हेल्थ ब्लेस कर लेना, खूब सारी खुशियाँ दे देना, सबकी मुरादें पूरी कर देना गुरु महाराज। जो भी मुझे बुलवा रहे हैं वो गुरु महाराज बुला रहे हैं, और मुझे अभी 1 मिनट पहले कुछ भी नहीं पता था कि मैं ये सत्संग शेयर करूँगी गुरु महाराज के सामने। एकदम से मैं खाना मुझे मांग रहा है, मैंने कहा नहीं मैं ये करूँगी, ये भी शेयर। थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राने, हर बार शुक्र, हर शाम के शुक्राने, हर सुबह के हर संगत के शुक्राने गुरु महाराज। और मेरा बहुत मन करा है मैं बड़े मंदिर भी आऊँगी, और मुझे ये भी पूरी पता है कि नहीं गुरु महाराज ये भी अरदास मेरी पूरे करेंगे, मुझे वहाँ बुलाएंगे। बस यही है कि जब से मैं गुरु जी के साथ कनेक्ट हुई हूँ, जुड़ी हूँ, और तब से थोड़ा सा मुझे विश्वास ये पूरा है कि मेरे गुरु जी मेरी अरदास पूरी करेंगे, मेरे दोनों बच्चों के अंग संग रहेंगे, उनकी सारी चिंताएं दूर करेंगे, घर में सुख शांति बनी रहेगी। गुरु महाराज ध्यान रख लेना, पूरी संगत का ध्यान रखना, पूरी संगत का देखना। मैं गुरु सारी संगत जी, मैं आज भी गुरु मंत्र जाप पहले बोल गई हूँ, अब मैं गुरु मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। संगत जी मैं चंडीगढ़ से हूँ। मैं वैसे तो ये मेरा दूसरा ही, आगे मैं नहीं बोलूँगी कि कितना कौन सा वाला शुक्राना है, क्योंकि गुरुजी जब देंगे वो भी बिना काउंटिंग के हमें देते हैं, तो इसलिए हमें भी नहीं बोलना चाहिए कि ये हमारा ये कितना वाला है। मैं चंडीगढ़ से, सॉरी संगत जी, सॉरी गुरुपा, मैंने गुरु मंत्र जाप पहले नहीं किया है, प्लीज़ प्लीज़ अपनी नादान बेटी को माफ़ कर लेना। शत शत बार नमन आपका, अनंतम 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 शुक्राने गुरुपा, अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी, जय गुरुजी। ये मेरा पहला सत्संग है जो मैं शुक्राना अपना शेयर कर रही हूँ। इसमें मुझसे जो भी बोलने में गलती हो वो मुझे गुरुजी और सारी संगत से मैं माफ़ी मांगती हूँ। मैं सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से चालू करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी, हजारों हजारों बार शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी का सत्संग 1 साल हो गया या 1.5 साल मैं इस पे फेसबुक पे सुनती आ रही थी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मैं गुरुजी से कब कनेक्ट होंगी। वो समय शायद मेरा उस टाइम नहीं आया था, मैं उस समय का इंतज़ार कर रही थी। मैं गुरुजी के सत्संग सुनती थी, उनकी प्रार्थनाएं, लेकिन कहते हैं ना कि गुरुजी से जब जुड़ना रहता है वो गुरुजी अपना समय खुद बना देते हैं। मैं सुन तो 1 साल से रही थी, लेकिन मैं कनेक्ट नहीं हो पा रही थी। फिर अचानक से मेरे पास, एक तो मेरा फ्रेंड सर्कल नहीं है, मैं किसी से बात नहीं करती हूँ, मैं अपने गृहस्थी में अकेली रहती हूँ। मतलब मेरे 2 बच्चे हैं, हस्बैंड हैं, हम 4 जने हैं, और मैं किसी से इतना बात में नहीं हूँ, इतने कनेक्ट नहीं हूँ। तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं गुरुजी से कैसे कनेक्ट होंगी, उनका स्वरूप मेरे पास कैसे आएगा। अचानक से एक दिन मैंने ऐसे ही मन में बोला कि गुरुजी, मेरा तो कोई फ्रेंड सर्कल भी नहीं है, मेरे पास आपका स्वरूप कैसे पहुँचेगा। देखो गुरुजी की महिमा। एक मेरी फ्रेंड है, उससे ऐसे ही नॉर्मली बात हुई, उसने ऐसे गुरुजी की बात की कि मैं स्टेटस डालती थी तो मुझे कहती थी कि आप गुरुजी को मानते हो। मैंने कहा हाँ मानती हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं पता है गुरुजी का स्वरूप कहाँ से मिलेगा। कहते हैं ख़रीदना नहीं है, आपको कोई गिफ्ट करे। वो सामने से मुझे कहने लगी, चलो भाभी मैं आपको गिफ्ट करती हूँ। मैंने कहा कैसे? मैं खुश हो गई। मैंने कहा कैसे, आप मुझे कैसे गिफ्ट करेंगी? उसने कहा कि मेरी एक फ्रेंड है जो इंदौर में है, उनके यहाँ सत्संग होते हैं, उसके पास काफ़ी स्वरूप है, तो वो मुझे भेजेगी, तो एक स्वरूप में आपको भी भेजूँगी। मैंने कहा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी,
आप तो देखो मेरा किसी से इतना है भी नहीं बोलचाल, और मैं मन में यही सोची थी मैं किससे बात नहीं करती हूँ, मैं कैसे गुरुजी के ग्रुप में ऐड होंगी, कैसे स्वरूप आएगा, कैसे मैं सत्संग करती, मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था। लेकिन गुरुजी की महिमा देखो, गुरुजी ने मुझे खुद कनेक्ट किया, मेरे पास स्वरूप आया। जिस दिन मेरे पास स्वरूप आया उस दिन हमारे घर में ऐसा लग रहा था कि साक्षात कोई शक्ति आई है, इतना पॉजिटिव लग रहा था, इतना पॉजिटिव, घर ऐसे जैसे महक रहा था हमारा। ठीक है, गुरुजी फिर आए, गुरुजी हमारे घर आए, गुरुजी का स्वरूप मैंने करवाया, फ़ोटो फ्रेम कराया, गुरुजी की स्थापना की अच्छे से, चरण स्वरूप, और मुझे स्वरूप तो मिला, उसके साथ साथ मुझे गुरुजी के चरण स्वरूप भी मिले। मैं धन्य हो गई चरण स्वरूप पाके गुरुजी के। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे पास गुरुजी आएंगे, उनके चरण स्वरूप भी आएंगे। उसके साथ साथ मैंने तो मांगा एक था, मुझे स्वरूप मिला, चरण स्वरूप मिला, मुझे लॉकेट मिला, मुझे ब्रेसलेट मिला, और क्या चाहिए। ये गुरुजी की महिमा ही है जो गुरुजी ने दिखाई अपनी। हम तो उनके सामने कुछ भी नहीं है, हम तो बस मांगना ही जानते हैं, देना तो हमें आता नहीं है। ठीक है, गुरुजी का स्वरूप आया। अब मैं सोचने लगी कि मैं अब सत्संग कैसे करूं, मुझे कोई आइडिया नहीं। एक मुझसे अकोला की हैं दीदी, आंटी जी, वो मुझसे ऐसे ही फेसबुक पे, मैसेंजर पे मैंने उनसे बात की, उनसे पूछा कैसे करते हैं। यूट्यूब पे भी सर्च किया कि गुरुजी का स्वरूप कैसे करते हैं। उनने मुझे रोज़ कहा कि मैं आपको आज फ़ोन कर रही हूँ, उस दिन फ़ोन कर रही हूँ, ऐसे करके उन्होंने 15 दिन निकल गए, उनका कॉल बैक नहीं आया। मैं उनको लिखती थी कि आप प्लीज़ मुझसे फ़ोन पे बात कीजिए। ठीक है, उन्हें जैसे अब गुरुजी की उस दिन महिमा थी, उनका 6 तारीख को मेरे पास फ़ोन आता है सामने से, और वो मुझसे काफ़ी देर बात करती है, अपने शुक्राना शेयर करती है, मैं अपने शुक्राना उनको शेयर करती हूँ। तो मुझे बोलती हैं कि मुझे गुरुजी ने कहा है कि आप कल सत्संग करो, कल 7 तारीख है और गुरुजी की 7 तारीख है बेस्ट, तो आप है ना 7 तारीख को आप सत्संग कीजिए। मैंने कहा ठीक है, जैसे गुरुजी का आदेश, मैं सत्संग करूँगी। फिर मैंने 7 तारीख को गुरुजी का सत्संग किया, फ्लावर से डेकोरेशन किया, गुरुजी को अच्छे से स्वरूप अच्छे से डेकोरेट करके किया। जैसे हमने सत्संग चालू किया, इतनी अच्छी वाइब आ रही थी, इतनी अच्छी, और जहाँ हम सत्संग कर रहे थे वो हमारा रूम इतना गर्म हो गया, इतना गर्म हो गया कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। ऐसा लग रहा था कि ऐसे यहाँ पे बहुत शक्तिशाली शक्ति जी बैठी हुई हैं, जो मैं बोल नहीं पा रही हूँ। मुझे इतना अच्छा लगा उस दिन कि ऐसा लगा था कि साक्षात गुरुजी मेरे घर आए हैं। सत्संग करते करते हमारी आरती हुई, हम रूम में बैठे थे तो रूम हमारा बहुत गर्म था, रूम से बाहर आ रहे थे बिल्कुल नॉर्मल था टेम्परेचर। तो ऐसा लगा था कि नहीं, गुरुजी हमारे घर आए हैं, गुरुजी ने हमें ब्लेसिंग दी है। हमारा जैसे जैसे सत्संग हुआ, प्रसाद, चाय प्रसाद चला, उसके बाद फिर हमारा नाश्ता चला, उसके बाद हमारी आरती हुई। आरती के बाद जैसे हम मत्था टेक रहे थे, गुरुजी के स्वरूप के सामने फ्लावर की वर्षा की थी मेरी बेटी ने। नॉर्मल फ्लावर्स रखे थे, लेकिन वो फ्लावर से ओम बन गया। हाय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मैं धन्य हो गई उस दिन जो गुरुजी ने मुझे चमत्कार दिखाया। मैं कहती थी मैं सबके सत्संग सुनती हूँ, गुरुजी सबके साथ चमत्कार दिखाते, मेरे साथ नहीं दिखाते, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, गुरुजी ने चमत्कार दिखाया। गुरुजी ने मुझे बटरफ्लाई में, जब से मैंने गुरुजी का स्वरूप मेरे घर आया है, मुझे रोज़ ब्लैक, येलो, ऑरेंज बटरफ्लाई, एक भी नहीं, 5-5, 6-6 मुझे बटरफ्लाई दिखती हैं। एक तोता आता है, कबूतर आता है मेरे इधर घर पे, वो देखता है, मैं बोलती हूँ जय गुरुजी, वो उड़ जाता है। ये गुरुजी की महिमा ही है जो गुरुजी दिखाते हैं। गुरुजी हमारे अपने साथ हमें ऐसे ही कनेक्ट करके रखना, ऐसे हमसे जोड़े रखना, ऐसे ही अपने चरणों में हमें स्थान देना। गुरुजी जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अपना अगला शुक्राना फिर शेयर करूँगी। आज के लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतन अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मुझसे सत्संग में जो भी गलती हुई हो, वो सारी संगत और गुरुजी से हाथ जोड़ के मैं माफ़ी मांगती हूँ। मुझसे जो भी गलती हुई मुझे माफ़ करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी।
जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आज मैं अपना शुक्राना गुरु जी को समर्पित करना चाहती हूँ। मैं आज कुछ सोच के नहीं बैठी कि मैं क्या बोलूँगी। जो भी बुलवाएंगे गुरु जी ही बुलवाएंगे। मैं आपको बताना चाहती हूँ संगत जी कि कुछ दिन पहले मेरा छोटा बेटा ठीक नहीं था, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मुझे उसे डॉक्टर को दिखाना था और डॉक्टर सिर्फ 12 बजे तक अवेलेबल था मॉर्निंग में। तो वहाँ पे हमें पहुँचना था जल्दी से जल्दी, जबकि मुझे घर पे ही 11:20 11:25 हो चुके थे और मुझे अपने फादर इन लॉ के साथ जाना था हॉस्पिटल। तो मैं क्या देखती हूँ कि मैंने अपने मन में ही बोला गुरुजी कि मेरे फादर इन लॉ तो बहुत स्लो ड्राइव कर रहे हैं, अब आप ही संभालो, आप ही चलाओ और आप ही जल्दी पहुंचाओ हमें। तो मेरे घर से हॉस्पिटल का जो डिस्टेंस है वो है 20 मिनट्स का अप्रॉक्सीमेटली, अगर जैम ना मिले तो मैं आपको बताना चाहूँगी संगत जी, उस दिन बहुत ज़्यादा जैम तो नहीं मिला, बट एक रेड लाइट पे हमें रुकना पड़ता है थोड़ी देर, 2-3 मिनट। हम घर से ही 11:20 के आसपास 11:25 के आसपास निकले थे और मुझे लग नहीं रहा था कि हम टाइमली पहुंच भी पाएंगे वहाँ पर। तो जब मैं हॉस्पिटल पहुंची तो सामने एक डिजिटल क्लॉक थी, वहाँ पे टाइम आ रहा था 11:41 AM। और जब हम इन सब नंबर्स को टोटल करते हैं तो ये 7 नंबर की ब्लेसिंग्स मिलती है। तो वहाँ पहुँचते ही सबसे पहले मुझे 11:41 दिखा, फिर मुझे समझ आ गया कि गुरुजी ने ही मुझे बचाया और ये 7 नंबर की ब्लेसिंग भी उन्होंने ही दी है। और फिर मैंने ये भी बोला गुरुजी यहाँ पे काफ़ी रश होता है इन डॉक्टर के पास, तो आप जल्दी जल्दी वहाँ पहुँचाना भी और जल्दी से हमें प्रिस्क्रिप्शन लिखवा के फ्री भी करवा देना। तो संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे कि हम गए और जाते ही हमारा नंबर, और फिर जो पूछना था मैंने अपने डॉक्टर से, फिर मैंने डॉक्टर से सब कुछ पूछा, मेडिसिन उन्होंने प्रिस्क्राइब करके दे दी और फिर हम वहाँ से हार्डली 2 या 3 मिनट्स में निकल गए उसके बाद। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ संगत जी कि जब हम गुरुजी को याद करते हैं ना सच्चे दिल से और उन्हें बोलते हैं कि आओ गुरुजी चलिए हमारे साथ, अच्छे से चलिए और अच्छे से ही लेकर आइए हमें वापस, तो वो हमारे साथ चलते हैं संगत जी। गुरुजी सिर्फ भाव के ही भूखे हैं, उन्हें और कुछ नहीं चाहिए होता हमसे। तो जब भी मैं घर से जाती हूँ हमेशा गुरुजी को बोलती हूँ गुरुजी मेरे साथ चलो और गुरुजी घर का भी ध्यान रखना। तो आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि कभी ऐसा नहीं हुआ। और जो जो मैं बोलती हूँ ना गुरुजी मैं अकेले जा रही हूँ बच्चे के साथ, तो आप प्लीज़ कोई ना कोई व्हीकल अवेलेबल करवा देना या फिर कोई ऑटो अवेलेबल करा देना, रिक्शा मिलवा देना, तो वो सब चीज़ें मिल जाती हैं इजीली। मतलब गुरुजी की संगत होना ही एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है अपने आप में। और आप सबको पता है गुरुजी मिरेकल करते हैं, बहुत मिरेकल करते हैं। तो उन सब चीज़ों के लिए मैं तहे दिल से शुक्राना करना चाहती हूँ अपने गुरु साहिब का। और कुछ दिन पहले मुझे मैसेज भी आया कि कहते अपने आप भी शुक्राना कर दिया कर। मैं बताना चाहूँगी संगत जी कि मेरे 2 बच्चे हैं और थोड़ा सा मेरा स्केड्यूल बिज़ी रहता है उनको लेकर, तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता, तो मैं ज़्यादा शुक्राना तो नहीं कर पाती गुरु साहिब का। पर हाँ उनसे अकेले में तो रोज़ शुक्राना करती हूँ कि शुक्राना है आपका, पर ऐसे शेयर नहीं कर पाती सत्संग। तो उसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ अपने गुरुजी से कि मैं बहुत ज़्यादा शुक्राना शेयर नहीं कर पाती। पर जब जब हम शुक्राना शेयर करते हैं गुरुजी का, उतने ही हम गुरुजी के नज़दीक आते जाते हैं। वो हमें अपनी और खींचते जाते हैं और हमें बताते जाते हैं कि आगे आपको क्या करना है क्या नहीं करना। और बहुत सारे ब्लैक मैजिक के कुछ दिनों से मेरे पास मैसेज आ रहे हैं, बहुत सारे
काफ़ी दिन हो गए ब्लैक मैजिक, जोन सा भी सत्संग सुनो ब्लैक मैजिक, जोन सा भी सत्संग सुनो ब्लैक मैजिक। तो अभी 2 दिन पहले ही मेरे पास मैसेज आया कि तुझे काल के मुंह से बचा के लाया हूँ। और उससे आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, उससे 1 दिन पहले ही मुझे इतनी हैवीनेस हो रही थी, इतनी पूरी बॉडी में हैवीनेस हो रही थी, कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, कुछ काम करने को मन नहीं कर रहा था, बस मन करता भाग जाओ कहीं पे, सब कुछ छोड़ के ना भाग जाओ, यहाँ मत बैठो, घर में मत बैठो। मतलब ऐसा होता है कि यहाँ से कहीं दूर चले जाओ। उस दिन मैं गुरुजी को बोल रही, गुरुजी आज तो कुछ अच्छा नहीं लग रहा, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा आज तो। उस दिन गुरुजी ने मुझे इतने सत्संग सुनवाए, सारा दिन मैंने सत्संग ही सुने सुबह से लेकर रात तक। और उन सत्संग से ही गुरुजी अपनी संगत का काफ़ी कल्याण कर देते हैं। और मैं ये भी बताना चाहूँगी संगत जी, मैं बहुत ज़्यादा पाठ पूजा भी नहीं कर पाती, क्योंकि छोटा बेबी है। जब बैठती हूँ कभी उठ जाता है, फिर कभी छोटे बच्चे के साथ 10 काम और होते हैं हमें, तो वो कामों में ही हम इतना बिज़ी रहते हैं कि पाठ पूजा भी मेरी प्रॉपरली नहीं हो पाती, इनफैक्ट हो ही नहीं पाती, सिर्फ सत्संग सुन पाती हूँ मैं। तो गुरुजी ने उस दिन मुझे सत्संग के थ्रू ही बचा लिया। और अगले दिन जैसे ही मैंने सबसे पहला मैसेज देखा तो यही था मैसेज में कि आज तुझे काल के मुंह से बचा के लाया हूँ। तो मैंने उसके लिए बहुत 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 शुक्राना करा गुरु साहिब का। और कभी ये भी मैसेज आते हैं कि तेरे बच्चों पे भी ब्लैक मैजिक किया हुआ है, तेरे हस्बैंड पे भी ब्लैक मैजिक किया हुआ है। तो करने वालों को तो हम रोक नहीं सकते हैं गुरुजी, पर आपसे यही अरदास है कि जो ये सब कुछ करते हैं उन्हें सद्बुद्धि प्रदान कीजिए, ताकि वो दूसरे का बुरा करने से अच्छा अपने अच्छे में और अपने पाठ पूजा में ध्यान दें, क्योंकि बुरा करने से उनके कर्म और ख़राब होंगे और उनको तकलीफ़ यहीं पे भुगत के जानी। आज वो किसी का बुरा कर रहे हैं, कल को यहीं पे हमें अपने कर्म कटवा के जाने पड़ते हैं। तो मैं चाहती हूँ गुरुजी उन सबको सद्बुद्धि प्रदान करो, ताकि वो इन सब चीज़ों में ना पड़े, दूसरे को परेशान ना करें और अपने कर्म ना खराब करें। और ये भी बताना चाहूँगी आपको संगत जी, मेरे को एक तो ब्लैक मैजिक के मैसेज बहुत ज़्यादा आते हैं, दूसरा मुझे हर दूसरे दिन, मतलब हर 1-2 दिन छोड़ के कैंसर का मैसेज, मतलब इतने कैंसर के सत्संग सुनती हूँ मैं, कभी कोई कैंसर का सत्संग, कभी किसी का कोई कैंसर का सत्संग। तो मुझे पता है मेरे गुरुजी ने मुझे बोला था कि तेरी हर बीमारी जड़ से ख़त्म कर दूंगा, ऐसा भी एक बार मैसेज आया था। और मुझे नहीं पता ये कैंसर के मैसेज गुरुजी क्यों सुनवाते हैं, लेकिन मैंने किसी संगत के ही सत्संग में सुना था कि जब उन्हें ऐसी फीलिंग हुई थी कि उन्हें ये डाउट हुआ कि उन्हें कैंसर होने वाला है या हो रहा है, तो उन्हें गुरुजी ने इतने सारे कैंसर के सत्संग सुनवाए। तो मुझे भी ये लगता है कि गुरुजी सत्संग के थ्रू ही हमारी कितनी बीमारियां हटा देते हैं। तो उसके लिए भी बहुत 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 शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। मुझसे बहुत बहुत गलतियां होती हैं दिन भर में, मैं बहुत, और आप मुझे बहुत सारे उपाय भी बताते हैं और मैं वो नहीं फॉलो कर पाती, उसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ गुरुजी। आप बहुत सारी चीज़ें बताते हो कि ये कर, ये उपाय कर, वो उपाय कर, पर मैं नहीं कर पाती, उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए गुरु महाराज। बस अपनी बेटी होने का हक कभी मत छीनिए मुझसे, और कभी मेरे गुरु पिता होने का हक मुझसे मत छीनिए गुरुजी। और हमेशा हमारे अंग संग सहाय रहना गुरुजी, अपनी पूरी साथ संगत के अंग संग सहाय रहना। जिनको भी ब्लैक मैजिक, मुझे पता है ब्लैक मैजिक कोई मजाक नहीं होता, ये बहुत टाइम लग जाता है इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए, क्योंकि मैंने ये नेगेटिविटी और ये ब्लैक मैजिक अपने ब्रदर और अपनी मदर पे, मतलब इतनी नेगेटिविटी उनके घर में देखी है। और मुझे पता है वो गुरुजी से पहले ही, मुझसे काफ़ी पहले जुड़ गए थे,
मुझे पता है उनको भी ब्लैक मैजिक और नेगेटिविटी से बाहर लाने के लिए गुरुजी को थोड़ा समय लगता है। हर एक चीज़ से बाहर आने के लिए हमें थोड़ा समय लगता है। तो गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना कि आप इतना सब्र बख्श देते हो अपनी संगत को, कि जब आप उनके संग होते हो ना तो फिर उन्हें डर ही नहीं लगता। मुझे भी ऐसा लगता है गुरुजी, पहले मुझे बहुत डर लगता था कि जब ब्लैक मैजिक के मैसेजेस आते थे नेगेटिविटी के, किसी के भी मेरा मूड ख़राब हो जाता था वो देख के, और सारा दिन फिर दिमाग में वही बातें घूमती रहती थी कि ये सब चल रहा है लाइफ में, ये सब हो रहा है, सब ख़राब हो रहा है, कुछ ठीक नहीं हो रहा। तो उसके लिए आप इतना सब्र बख्श देते हो एक टाइम के बाद कि फिर डर नहीं लगता। फिर लगता है गुरुजी है ना, कोई बात नहीं, जो जो कर रहा है उसको करने दो, हमें अपने कर्म अच्छे रखने हैं, हमें किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना, ना बुरा करना है, क्योंकि हमारे सिर पे तो हमारे गुरु पिता हैं बचाने के लिए, जो हमें हर खतरे से, हर परेशानी से बचा लेंगे। पर जो कर रहे हैं ये सब बुरे कर्म, उनके साथ उस टाइम कौन होगा जब उन्हें अपने कर्मों का हिसाब देना होगा। तो मैं यही कहती हूँ संगत जी, थोड़ा सा पेशेंस रखिए अपने साथ। सबकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स होते हैं, बुरा टाइम आता है, पर वो गुरुजी हाथ पकड़ के निकलवा देते हैं। बस हमें उन पे विश्वास और सब्र रखने की ज़रूरत होती है। और आपका विश्वास इतना पक्का होना चाहिए कि चाहे कोई दुनिया इधर से उधर हो जाए, आपको अपने गुरु पे पूरा विश्वास होना चाहिए। जब आपका विश्वास एक बार गुरुजी पे हो जाएगा ना, तो गुरुजी आपका हाथ कभी नहीं छोड़ते संगत जी। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि मैं एक सिख फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मुझे गुरुजी से जुड़े हुए 7-8 महीने हो गए हैं। उससे पहले मैं गुरु ग्रंथ साहब जी को मानती थी, अभी भी मानती हूँ गुरु ग्रंथ साहब जी को, और अब मैं गुरुजी को भी मानती हूँ, मैं दोनों को मानती हूँ। तो मेरे लिए तो दोनों ही मेरे गुरु हैं। और हमारे गुरु तो ऐसे हैं कि खुद कहते हैं गुरु बिना गति नहीं होती। तो हमें तो गुरु भी भगवान रूप में मिल गए कि वो इस संसार से हमें कैसे तार देंगे हमें पता ही नहीं चलेगा। बस हमें उनके वचनों का पालन करना है और सच्चे दिल से पालन करना है। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी गुरु जी के मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, अगर मुझसे ये सत्संग करते हुए कोई भी भूल चूक हुई हो तो मुझे क्षमा कीजिए गुरु जी, क्षमा कीजिए संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु पिता। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी, आंटी जी, शुक्राना। मैं शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। शुरू करने से पहले मंत्र जाप करना चाहती गुरु जी का। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैंने पहले भी अपलोड किए हैं सोनू अंकल जी के चैनल, लेकिन एक के बाद 2-3 और करते, लेकिन वो अपलोड नहीं हुए। मैं इसलिए दूसरे चैनल पे कर रही हूँ। कहते हैं ना, शुरू से करो। मैं गुरु जी के साथ जुड़ी थी 2021, मतलब सत्संग सुनने लगी थी 2021 में। पड़ोस में हमारा गुरु परिवार आया था हमारे पड़ोस में, तो वो हर एक साल सत्संग कराते, हर एक महीने, मतलब 2021 से लेकर 2022 तक उन्होंने पूरे साल हर एक महीने सत्संग कराया था गुरु जी का। तो इनवाइट करते थे, पड़ोस में रहते थे, इसलिए मैं भी चली जाती थी। अच्छा लगता था गुरु जी का कीर्तन सुनना, कथा, मतलब शुक्राना सत्संग करते थे संगत, तो अच्छा सुनने बहुत अच्छा लगता है।
तो ऐसे धीरे धीरे शुरू होती है। उससे पहले मैं बुटीक में, मेरा एक बुटीक है जहाँ कपड़े सिलवाती हूँ, तो उसने मैं उनके घर उनके बुटीक पे गई तो एक गुरु जी का सूप लगा हुआ था। तो मैंने कहा ये कौन है? कह रहे गुरु जी हैं, पर अब है नहीं, चोला छोड़ दिया। मैं क्या, अच्छा। मैंने फिर जय गुरु जी बोला, हाथ जोड़ दिए बस। उसके बाद फिर धीरे धीरे सत्संग सुनने लगी। फिर 2024 में मैं जुड़ी हूँ गुरु जी के साथ, वो जनवरी में, 22 जनवरी को। हुआ क्या क्या, हमारे पड़ोस में उन्होंने सत्संग कराया था 2022 मतलब 24 हुआ 22 जनवरी। तो हम पूरा परिवार गए थे, बेटा, बहू, हस्बैंड, अंकल, पोता, मैं भी गई थी। सबने लंगर खाया था। तो मैंने भी लंगर तो मैं हर एक महीने खाती थी, लेकिन उस टाइम कुछ नहीं हुआ था। हर एक महीने खाती थी लंगर प्रसाद, जल प्रसाद, हर एक चाय प्रसाद। तो उस दिन रात को क्या हुआ, पता नहीं आधी रात को ना मेरे पता नहीं अंदर क्या होने लगे, मुझे ऐसे घबराहट सी हुई, अंदर से जलन होने लगी गले में, मुझे शरीर ठंडा होने लगे। मैं कि मुझे क्या हो रहा है, मैं एकदम उठी। ये हस्बैंड आके बोले क्या हुआ, मैं क्या पता नहीं, मुझे कुछ हो रहा है अंदर, मुझे नहीं पता क्या हो रहा है। मैं हाय करने लगी, कभी इधर लेटू बेड पे, कभी उधर, ना लेटा जाए ना बैठा जाए। फिर बेटा अपने कमरे से कह रहा है क्या हुआ मम्मी, मैं क्या पता नहीं क्यों हो रहा है, मैनू अंदर कुछ हो रहा है। मैं क्या उल्टी होने क्या यहीं पर कर दो। मैं क्या नहीं, मैं बाथरूम में गई हूँ तो एकदम उल्टी आ गई मुझे 2 बार। वो कह रहा, मैं, वो मेरे पीछे खड़ा था, उसने मुझे पकड़ना चाहा क्योंकि उस मेरे शट्टी का पिन चल रहा था उस टाइम। मैं भागी भागी गई, मुझे मुझे कुछ नहीं पता मेरा दर्द कहाँ हो रहा है कहाँ नहीं, बस उल्टी करने भागी बाथरूम में। तो एकदम उसने वो पकड़ने लगा, मेरे पीछे ही खड़ा था, लेकिन मैं उसको, मेरे एकदम आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया और मैं बाथरूम में नीचे गिर गई। फिर उसने अपने पापा को आवाज़ लगाई, दोनों ने पकड़ के मुझे उठाया। मेरे शरीर पसीना ही पसीना, मुंह सिर सारा पसीना, सर्दी के दिन भी पसीना आ गया। पता नहीं क्या गुरुजी ने उस दिन क्या निकाला मेरे अंदर से, कौन सी बीमारी, क्या किसी का खिलाया हुआ ब्लैक मैजिक निकाला, मुझे नहीं पता। मैसेज तो आते हैं ब्लैक मैजिक के गुरुजी के भी, वो तो मुझे पता है। हमें काफ़ी साल से हम जूझ रहे हैं ब्लैक मैजिक, वैसे परेशान है, दुखी हैं। घर में बहुत क्लेश, लड़ाई झगड़ा, बच्चों में, मतलब बनती नहीं, भाई भाइयों में, बउआ में, पता नहीं क्या हुआ उस दिन। उसके बाद बहुत टाइम से हम झेले वो गुरु जी का। मैं वो ये कोई अपना ही है तो अपना ही था, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आता कि अपना तो चलो, अपनों को वो तो है नहीं जिसने किया था, अब कौन कर रहे हैं हमारे हम ऊपर ब्लैक मैजिक। वो तो दुनिया छोड़ के चली गई 2019 में, किया था उसने, मेरी जेठानी थी मेरे से बड़ी। उसके बाद अब गुरुजी कह रहे हैं फिर ब्लैक मैजिक है, ब्लैक मैजिक चल हो रहा है। अब ये नहीं पता कौन है कौन नहीं करने वाला हमारे ऊपर, अपना है कौन से परिवार का, अब पता नहीं, गुरु जाने। वही गुरुजी निकालने इस मुसीबत से, दुखी घड़ी से बहुत परेशान है, कोई काम नहीं रहा हमारा। दो दो फैक्ट्रियाँ थी, कोई फैक्ट्री अपनी नहीं रही। मतलब बड़ा बेटा किराए की फैक्ट्री में काम करता है, छोटा बेटा मेरे हस्बैंड घर में, कोई काम नहीं रहा। अब काम ही नहीं रहा, फैक्ट्री में काम ही नहीं चल रहा, काम ही है ही नहीं, बेले बैठे। मैं हॉस्टल है जो हमारा किराए की इनकम आती है थोड़ी बहुत, उसी से गुजारा चल रहा है, लेकिन परेशानी बहुत है। गुरु जी निकाल दें हमें इस मुसीबत से। शुक्राना सत्संग फिर करूँगी। अब विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, सत्संग संगत जी, जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना सत्संग शुरू करने से मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु आंटी जी, जय गुरु संगत जी। ये मेरा तीसरा सत्संग है। ये जून की बात है, 29 जून की बात है। हाँ, मैं ना दिल्ली से बाहर जा रही थी, घर से निकलते समय मैंने कहा गुरुजी बाहर जा रहे हैं, आज साथ में चलो, साथ में ही आना मुझे तो मैंने रात में घर से निकली, मैं क्या गुरुजी आप हिंट तो दो, ब्लेसिंग तो दो भी, आप मेरे साथ हो भी, हमारे साथ ही नहीं हो। तो जैसे गाड़ी आगे से निकली, गाड़ी निकली, 7 नंबर का स्टिकर लगा हुआ था साइड में, जहाँ दरवाजे बैठते हैं ना साइड में, आगे पीछे की तरफ।
तो 7 नंबर का स्टिकर था। मैं कहा जय गुरु शुक्राना गुरु। फिर आगे आगे जाते जाते मतलब नंबर ट्रिपल नंबर 777774 ऐसी नंबर ब्लेसिंग देते रहे। साथ साथ में गुरु जी वाली कैब जा रही थी स्कूल के बच्चे की। तो मैंने ना जाते जाते काफ़ी गुरु जी के दर्शन होते रहे, मतलब ब्लेसिंग मिलती रही नंबरों की। तो मैं क्या फिर हम अगले दिन 30 तारीख को वापस आ रहे थे। तो रात हुई थी हमें आते आते। तो हम एक जगह खड़े थे। मैं गुरु जी ब्लेस आल लिखा होता ना गाड़ी में, जय गुरु जी के दर्शन तो किए हैं, गुरु जी के गाड़ी के दर्शन तो कितनी बार हुए हैं। ऑलवेज ब्लेसिंग गुरु जी। मैं क्या मैंने कभी देखा नहीं है स्टिकर, मतलब कैसा लिखा होता है, मतलब ये वाली ब्लेसिंग नहीं मैंने देखी अभी तक दर्शन हुए। तो इधर उधर मैं गाड़ियाँ देख रही थी, नंबर पड़ी थी जो नंबर भी 777 सिंगल 774 आ रहे थे। तो एकदम मैंने साइड में देखा ब्लैक कलर की बड़ी गाड़ी थी, एक तरफ गुरुजी लिखा था, एक तरफ ऑलवेज ब्लेसिंग गुरुजी। तो मैं इतनी खुश हुई। मैं कहा अच्छा जी गुरु जी, आपने अब ब्लेसिंग दे ही दी अपनी, आपने हिंट दे ही दिया भी मैं तेरे साथ ही हूँ। ये वापस जा रहे हैं, हम रात को वापस आ रहे थे घर अपने दिल्ली। पहले एक दिन पहले दिल्ली से बाहर जा रहे थे। तो मुझे इतनी खुशी हुई। मैंने पहली बार स्टिकर देखा था ऑलवेज ब्लेसिंग गुरु जी। बहुत खुश हुई, मन खुशी। तो ये 10 जुलाई की बात है। हम ना मतलब घर से कहीं जा रहे थे, किसी कोई था प्रोग्राम था दोपहर के टाइम। तो मैं क्या गुरु साथ में चलना, साथ में वापस आना। तो रास्ते में गुरु वो तो दर्शन होते रहते हैं, देते रहते ब्लेसिंग, अपनी हिंट देते रहते, मैं साथ में हूँ। आगे क्या हुआ, एक मेरे से मैं क्या गुरु जी अपने दर्शन दे दो, भाई मेरे साथ हो, आप अपनी ब्लेसिंग दे दो। नंबर भी तो हो रही थी। मैं तो एकदम मेरे साइड में मैंने कहा देखा मेरी साइड में गाड़ी खड़ी है। तो धीरे धीरे चल रही थी, ट्रैफिक था ना, लाइट थी तो वहाँ पर खड़े थे। तो एकदम देखा स्वरूप मैं गुरु जी का ब्लैक एंड वाइट क्रीम कलर का चोला पहनते ना गुरु जी, पूरी बाजू वाला शर्ट। तो उसका सूट लटक रहा था, मेरी तरफ दे रहे, मतलब मुस्कुरा रहे थे। मेरी एकदम निगाह गई। मैं क्या जय गुरु शुक्राना गुरु जी। मेरे एकदम हाथ जोड़ गए। मैं कहा मन को एकदम मेरी हंसी आ गई, खुशी हो गई, मन चेहरे पे खुशी से आ गई। मैं कहा गुरु जी मेरे को ये देख रहे, इधर उधर ना दे। मैं इधर देख रही थी भी कहीं स्वरूप मतलब दर्शन हो जाए, ब्लेसिंग दे दे अपनी गुरु जी। तो ऐसे हुआ मैंने वो स्वरूप के दर्शन किए, शीशे में जो लोग लटकाते हैं ना आगे, उसके दर्शन किए थे। फिर आते हुए गुरु जी ने वहाँ पर खड़े हुए, गाड़ियाँ खड़ी थी, गुरु जी जय गुरु जी, ऑलवेज ब्लेसिंग गुरु जी, नंबरों की ब्लेसिंग देते रहते हैं गुरु जी, कृपा करते रहते हैं। लेकिन अभी तक मेरी बड़ी जो अरदास है वो अभी तक पूरी नहीं हुई। जब तक पूरी नहीं होती मैं तब तक और सत्संग शुक्राना सत्संग का शेयर नहीं कर सकती। गुरु जी आप भी प्रार्थना करें, ब्लेसिंग दे गुरु जी, ब्लेसिंग दे भी मेरी अरदास पूरी कर दे, परिवार को एक कर दे गुरु जी, मेरे बच्चों को एक मिला दें, आपस में भाई भाई बोलने लग जाए, बहुएँ बोलने लग जाएं, प्यार बना रहे, आपस में प्यार बना दें गुरु जी। ऐसी कृपा प्रार्थना कर मेरी तरफ से भी। जय। अब इसमें शुक्राना सत्संग को रही विराम करती हूँ। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आंटी जी मेरा शेर सारे अपलोड कर देना। शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं पहले अब सत्संग में बताना भूल गई थी, ये मैं दिल्ली से हूँ और नाम नहीं बताना चाहती। इससे पहले मैंने कई सत्संग शेयर किया, लेकिन एक ही अपलोड हुआ था, बाकी 2-3 हुए नहीं। मैं परेशानी, मैं क्या कौन से चैनल में, क्योंकि नंबर ही नहीं लगता था। ये नंबर मैंने नया आज ही लिया है व्हाट्सअप सत्संग सुनते सुनते। मैं क्या चलो इस पर करके देखती हूँ, मेरा शुक्राना सत्संग शेयर हो अपलोड हो जाए। प्लीज़ ज़रूर करना, ये मतलब लिंक बताना कब करो कब। ये दूसरा सत्संग है। ऐसा हुआ कि मई में मैं अपने बेटे घर गई थी फरीदाबाद। तो मेरी बड़ी बहू की तबीयत ठीक नहीं थी। मैं कहा चलो थोड़े दिन निकाल आती हूँ। तो मैं उनके घर गई थी, बेटा ले गया था मेरे को, थोड़े दिन 10-12 दिन लगा के आई थी। तो एक दिन क्या हुआ, मैं ना बाहर बैठी बालकनी में, सत्संग सुन रही थी गुरु जी का 8 बजे करीब, 7:30-8 ऐसी सुबह के टाइम।
तो एक ना मधुमक्खी मेरे पास आई ऐसे चारों तरफ घूमने लगी। मैं डर गई, मैं कहीं मधुमक्खी के काट ना लेके, मुझे पहले इससे पहले भी एक बार बहुत तेज़ काटा था मधुमक्खी, मैं डर गई थी। तो मैंने हाथ से इधर उधर कर दिया, कभी इधर आए कभी इधर आए, तो मैंने हाथ से परे कर दिया। मैं कहती मधुमक्खी है काट ना ले। तो थोड़ी देर, पता नहीं अगले दिन है मैसेज, मैंने फ़ोन खोला यूट्यूब खोला तो उसमें पहला मैसेज आया, कुड़िए मैं तेन दर्शन देन आए, तेरे को आए सी, तू मैनू भजाता। मैं क्या अच्छा गुरु जी, मैनू नहीं पता सी तुसी से उस, मैं माफ़ी चाहनी हाँ गुरु जी, फिर दर्शन दो मैनू। ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਮੇਰੀ ਬਹੂ ਨੇ ਨਾ 2 ਸੈਟ ਈਅਰਿੰਗ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ, ਸੀ ਤਾਂ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਪਾ ਲਿਆ, ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਤੇ ਇੱਕ ਰੱਖਤਾ ਮੈਂ ਪਰਸ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਸ ਲੈ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਪਾਣੀ ਆ, ਦੂਸਰਾ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਲੱਭੇ ਨਾ, ਮਿਲੇ ਨਾ, ਕਹਾਂ ਗਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ। तो मैं ना सारे अलमारी देखने लगी, पर्स भी जो लेके गई थी, बार बार पर्स खोलूं उसमें ना मिले। फिर मैंने सारे कपड़े निकाले अपनी अलमारी के, तो मैं क्या कपड़ों के नीचे ना रख दिया, शायद गलती से भूल गई हूँ मैं कहाँ रखा है। तो मिले ना, मेरे आंखों में आंसू आ गए। मैं गुरुजी ढूंढवा दो कहाँ है, दिला दो, मिल जाए मुझे वो ये नहीं, वो जो बहू ने दिया था। तो वो पर्स मैं पहले भी यूज़ देखा था, यूज़ भी कर रही थी, लेकिन फिर मैंने पता अंदर मन में क्या थॉट आया, गुरु ने क्या डाला, क्या तू बैठ के तो देख आराम से। मैंने सारी जिपें खोली, मैं क्या एक बार और देखती हूँ चलो। एक जिप मैंने खोली, अब वो मैं कितनी बार खोल चुकी हूँ पहले, लेकिन उस दिन मिल गया, उससे पहले कभी नहीं मिला। मैं क्या वाह, ये तो मैं कितनी बार खोले। मैं दोबारा जा रही थी फरीदाबाद, जब भी मैं ले गई थी उसमें तब भी नहीं निकला था, पता नहीं कहाँ से एकदम मैं आंखों के सामने आ गया, हाथ में आ गया मेरे जिप में। मैं क्या शुक्र है गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। चाहे चलो प्यार से चीज़ दी, चाहे कोई भी हो, सोना चांदी ना भी हो, पत्थर भी हो, तो भी बंदा खुशी खुशी होता है। मेरे को किसी ने अपने ने दी है, तो ऐसा हुआ। एक बार मैं ना दोपहर के टाइम सो रही थी, तो नहीं रात के टाइम, हाँ 22 ये अगस्त की बात है। हाँ मैं ना आँखों में मोते, मैं दवाई डॉक्टर के पास हो गया थी, उसने दवाई डाल दी थी। तो 8-9 बजे, 8 बजे 7-8 बजे करीब की बात है, मैं लेट गई थी आगे। तो मुझे ना सपने में मधुमक्खी, इतनी मोटी मधुमक्खी दिखी, मधुमक्खी के रूप में गुरुजी ने दर्शन दिए। भी इधर कभी उधर, कभी मैं इधर हूँ कभी उधर, आवाज़ से हूँ आवाज़ आती रही, इतनी मोटी मधुमक्खी मैंने कभी देखी नहीं। तो मैं क्या ये गुरु जी ने दर्शन दिया, शुक्राना गुरु जी। मैं क्या चलो दिए तो सही, उस दिन तो मैंने भगा दिया था, लेकिन मैंने फिर नींद में एकदम मेरी आँख खुली 9 बजे, मेरे बेटे ने उठाया कि मम्मी रोटी खा लो। मैं कितने बजे, कह रही 9 बजे। मैं क्या 9 बज भी गए, मैं ऐसी लेटी थी, आँखों में दवाई डाली थी। तो मैं क्या रात के टाइम, अरे एक बार दोपहर के टाइम मैं सो रही थी, तो ना मैं क्या गुरु जी मुझे मोर के रूप में कभी दर्शन नहीं दिए। और ना तितली के रूप में तो फिर भी होते रहे हैं, मधुमक्खी के रूप में 2 बार हो गए, एक बार सपने में, एक बार दिल्ली में। तो ना मैं दिन में ही सो रही थी, दोपहर के टाइम ऐसी सोफे बैठी बैठी नींद आ गई। तो क्या देखती सपने में मोर, 2 मोर इधर उधर, मतलब दीवार के में लंबे, मतलब लटक रहे, पेंटिंग होगी या पता नहीं क्या था, मतलब मुझे दिखे सपने में। तो मैं क्या शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी, आपने मोर के रूप में दर्शन दिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अपने सत्संग को यहीं विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। इसी शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।